बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। A fool's mind is at the mercy of his tongue, while a wise man's tongue is under control of his mind. ये वही बात कि बेवकूफ़ शख्स की ज़ुबान उसके बेवकूफ़ शख्स का दिल उसकी ज़ुबान में होता है, उसके मुंह में होता है, और अक्लमंद शख्स की ज़ुबान उसके दिल में होती है। तो इस बात का हमें ख़याल रखना है कि जो हमारे जी में आए वो ही कह दें, नहीं ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। जो जी में आए वो नहीं कहना, वो कुछ कहना है जो हमारे ज़रूरत है और जो हमारे लिए इज़्ज़त का बायस हो। हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। हर वक्त हर एक तरह की बात नहीं करते और हर एक तरह की बात को हर वक्त नहीं किया जा सकता। तो हर एक चीज़ मुख्तलिफ है। ऐसे लोगों के मकूले बने हुए हैं, लोगों की सेयिंग्स हैं, लेकिन ये सारी बातें अक्लमंदों के लिए होती हैं। अ वर्ड फॉर अ मैन इज़ इनफ। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। वी आर रिक्वायर्ड टू बी सेंसिबल। और अल्लाह से मांगें, अल्लाह से आप तौफीक मांगेंगे तो वो अल्लाह आपको तौफीक अता करेगा। जो कुछ मांगेंगे वो कुछ अता करेगा इंशाअल्लाह। We proceed towards the exercise 5.2 of the factorization of the form. This is D form of types of factorization, where we are given 4 factors along with a single term. फर्स्ट टर्म में 4 फैक्टर्स हैं और एक सिंगल टर्म कांस्टेंट की फॉर्म में है। हो सकता है इस कांस्टेंट के साथ एक्स स्क्वायर भी हो, वेरिएबल भी दिया जाए, लेकिन नहीं भी हो सकता, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास के साथ नहीं है। और ये हो भी सकता है, आपकी बुक में ये क्वेश्चन गिवन है और ये आप 8th क्लास में भी कर चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, वी आर गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 where x square plus 5x plus 4 and x square plus 5x plus 6 minus 3 is named as 1. अब इनमें दोनों में एक ही चीज़ नज़र आ रही है, that is x square plus 5x, x square plus 5x. So we replace this to write x square plus 5x equal to y, suppose, and 1 becomes y plus 4 into y plus 6 minus 3. Multiplying the two factors y plus 4 and y plus 6 makes it y square plus 10y minus plus 24 minus 3. 24 plus and minus 3 results in plus 21. Two factors of 21 which give sum equal to 10. Two factors of 21 which gives sum equal to 10. 3 7s are 21. This gives sum equal to 10. Very simple factorization. 4 terms are there, y square plus 7y plus 3y plus 21. First two terms have a common quantity of y. Last two terms have a common quantity of 3. So we take y common from the first two terms and 3 from the last two terms. So we are having y into y plus 7 plus 3 common, y plus 7. Then this step, last step, has 2 terms. Again and again my emphasis is these are 2 terms, and in these 2 terms first term comprises 2 factors, y and y plus 7. Second term comprises 2 factors also, and y plus 7 is the factor in the 2 terms is common. So we take common y plus 7 and remaining quantities are combined together to have y plus 3. This is, but the question was not given in the variable y.
we are to substitute back in 1 from 2, from equation number 2, or from this 2 position of y. What was y? Y was equal to, y was considered as x square plus 5x. Plug in back in the 3 the value of y. It becomes x square plus 5x plus 3 and x square plus 5x plus 7. Still, we are to look for the further factorization. Whether is there any situation where factors of 3 which give sum equal to 5? No, this may not be factored. Check whether 7 has 2 factors which give plus, which give sum equal to 5. No, it means that these 2 factors, first factor is x square plus 5x plus 3, second factor is x square plus 5x plus 7, these 2 factors are no more reducible. What is it technically called? It is not reducible to further factorization. या हम यूँ कह सकते हैं कि इसके मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसलिए हम इसका अब कंक्लूजन लिखते हैं. कंक्लूजन में जो गिवन था हमने पहले उसको सपोज किया y के इक्वल, फिर उसको सिंप्लीफाई करके फिर y की वैल्यू दोबारा प्लग इन की, तो इसलिए दरमियान में बहुत सारे स्टेप्स आ गए. तो कंक्लूजन लिखना ज़रूरी होता है कि हमें गिवन क्या था, हमने फैक्टर्स फाइंड कैसे किए, इसलिए इसको आपने हर तौर पे लिखना है. इफ़ एनीवन मिसेस इट then there will be a deduction of some marks, even up to 0.5 marks. So be careful about writing the conclusion. Hence x square plus 5x plus 4 into x square plus 5x plus 6 minus 3 is equal to x square plus 5x plus 3 and x square plus 5x plus 7. This is the required factorization. In your 8th class you have learned it. What? This. Look, you have learned this type of factorization. Here a square minus 3a would be considered equal to x or y or anything else. Then the expression will become y square minus 38y minus 80. उसके फिर फैक्टराइजेशन करनी है. और ये जो 3 नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये उसी तरह के हैं जैसे आपको 5.2 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं. तो इनमें से एक कर लेते हैं. अभी नेक्स्ट में इसी तरह का क्वेश्चन होगा. नेक्स्ट में हमारे पास है एक्सरसाइज 5.2, द सेम फॉर्म, द सेम टाइप ऑफ एक्सप्रेशन will be considered. Question number 4, part number 3. We are having x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 into x plus 5 minus 15. What is the real way to simplify it or to find factors of this? Is the way that the 2 factors, these are 4 factors in first term. First term comprises 4 फैक्टर्स. इन 4 फैक्टर्स को इस तरह से रीअरेंज करके लिखना है कि हम अगर देखें कि इनके साइंस के साथ 5 के साथ 2 को ऐड करें तो 7 आता है, 3 के साथ 4 को ऐड करें तो 7 आता है. इस तरह हमने x प्लस 2 के साथ लिखना है x प्लस 5 को और x प्लस 3 के साथ लिखना है x प्लस 4 को. जब इनके फैक्टर्स को इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. अब हम x स्क्वायर प्लस 7x को प्लग इन कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं इक्वल टू y. जब इसको y के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 विल टर्न इनटू अ फॉर्म y प्लस 10 इंटू y प्लस 12 माइनस 15. Product of these 2 factors which are y plus 10 and y plus 12 makes it y square plus 22y plus 120 minus 15. 120 minus 15 gives us 105. The factors of 105, middle term breaking is applied here. The factors of 105 which give sum equal to 22. Sum equal to 22.
इसका मतलब ये हुआ अगर एक 12 हो तो दूसरा 10 होगा, 12 10 तो 120 होता है। अब 12 10 से 120 होता है, ये 105 है। अब हमने कैसे करना है कि हम वो नंबर फाइंड कर लें कि ये 105 आए। अब 12 को पीछे की तरफ लाना है, 10 को पीछे की तरफ लाना है और 12 को आगे की तरफ ले जाना है। उससे हमारे पास नंबर आएगा 15। 12 को आगे की तरफ ले जाना है, 10 को पीछे की तरफ ले आना है, तो नंबर आएगा 15 एंड 7। 15 प्लस 7 मेक्स 22। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है कि ये प्लस साइन है, तो 22 के ऐसे दो फैक्टर्स होने चाहिए, दो पार्ट्स होने चाहिए जिनका सम 22 बने और प्रोडक्ट 105 बने। तो इस तरह से हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके आता है कि 15 और 7 हो तो इनका सम 22 बनता है और इनका प्रोडक्ट 105 बनता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी फेमिलियर टू ऑल द स्टूडेंट्स, इज़ दैट we write y square plus 15y plus 7y plus 105. Now y is common from first two terms and 7 is common from last two terms, so we have next step as y into y plus 15 plus 7 into y plus 15. Again and again my emphasis is now in the last step in the view we are having y into y plus 15. This is one term and second term is 7 into y plus 15. So y plus 15, the portion y plus 15 in first and second term are common, are same. So this is taken common and we remain with y plus 7 which are combined together to have two factors of the given expression which was earlier y square plus 22y. हमने इसके दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए, वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105 के ये फैक्टर्स आए। ये y में तो हमें क्वेश्चन गिवन नहीं था, हमें तो वेरिएबल x में क्वेश्चन गिवन है, इसलिए दोबारा से y की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इसके साथ। y was considered in 3, so plug in x square plus 7x back for y in equation number 4. We get in expression number 4 we get x square plus 7x plus 15 and x square plus 7x plus 7. 15 के ऐसे दो फैक्टर नहीं बनते, फर्दर हमने देखना है कि इसकी फैक्टराइजेशन होती है या नहीं होती, ये रिड्यूसिबल है या नहीं है। रिड्यूसिबल का मतलब होता है उसके फैक्टर्स बनते हैं या नहीं। 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 7 हो, नो, देयर एग्जिस्ट नो फैक्टर्स ऑफ 15 which give sum equal to 7, nor factors of 7 give 7 as sum, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए इसका लास्ट स्टेप हम लिखेंगे कंक्लूजन की फॉर्म में। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। हमें गिवन था x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, ये एक ही टर्म है सारी की सारी, माइनस 15। इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए और वो आए हमारे पास। फैक्टर्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में हो, ये और ये प्रोडक्ट में है, इसलिए हम इनको फैक्टर्स कह सकते हैं। ये फैक्टर्स नहीं थे, ये टू टर्म्स थे, फर्स्ट टर्म के 4 फैक्टर्स थे और सेकंड टर्म थे। उसी तरह से जैसे ये 2 टर्म्स हैं और इन में दोनों टर्म्स में दो दो फैक्टर्स है, एक y और दूसरा y प्लस 15, एक 7 और दूसरा y प्लस 15। हेयर इज़ द सिचुएशन डिफरेंट। फर्स्ट टर्म में ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 और सेकेंड टर्म है माइनस 15 इस एक्सप्रेशन की। अच्छा, अब हम अगर इसी के फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स को अलग-अलग तौर पे देखें तो फर्स्ट फैक्टर में 2 टर्म्स, सेकंड फैक्टर में 2 टर्म्स, थर्ड फैक्टर में 2 टर्म्स, फोर्थ फैक्टर में भी 2 टर्म्स और इसके माइनस 15 इसके सिर्फ एक ही टर्म है। ओके, सो this is the difference between terms and factors. Hence one becomes this was the conclusion। ये जो हमारे पास 1 है इसका कंक्लूजन ये आ गया। हम इस तरह से भी शॉर्ट वे में कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगर उसी तक लिखे जो ऊपर लिखा हुआ है तो इधर आपने हैंस या देयरफॉर
या 100 या 10 लिख देना है। ये 10 उर्दू का नहीं है, इंग्लिश का है, THUS, जिसको कुछ लोग थस भी पढ़ते हैं। वट एवर यू प्रोनाउंस इज ट्रू। ओके ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज the same, but it is most difficult question in this exercise. X plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 6 minus 3x square. Again, two terms are there in the given expression, but first term contains 4 factors, last term contains 1 factor, 2 factors, and we are required to factorize it. तो अब देखिए x plus 1 और x plus 2 और x plus 3 और x plus 6, इनको इस तरह से रखना है कि इनमें कुछ एक जैसा आए। अब एक मसला ये हो गया कि अगर 1 को 3 से ऐड करें और 2 को 6 से, तो फिर भी दोनों सेम नहीं आते, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। 1 को 2 में ऐड करें और 3 को 6 में, तो वो भी नहीं आते एक जैसे। अब हमने ये देखना है कि कांस्टेंट टर्म दो फैक्टर्स के, यानी अगर हम दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म सेम कैसे आएगी। इन दोनों के कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 होता है। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आता है। तो इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है कि इसमें हमने यूँ लिखना है x plus 1 into x plus 6 into x plus 2 into x plus 3, when these two of each terms will be simplified, we get the same constant term and square term. Square term is x square, constant term is 6. Square term is x square, constant term is 6. So this is different than remaining 4 parts of this question number 4. This is a bit different. यही ट्रिक है इसके अंदर, तो इस ट्रिक का ख्याल रखना है, इस क्वेश्चन को याद रखना है। इस क्वेश्चन में ऐसा ही ट्रिक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। रिमेंबर दैट योर एनुअल एग्जामिनेशन will be in a way will be set from any of the one of the book or one of the recommended books which are of Punjab board or KPK board or बलूचिस्तान। ख्याल रखना है इसका। क्वेश्चंस को समझें कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। सिर्फ जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई है उनको रट्टा नहीं लगाना, उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी। वी प्रोसीड टुवर्ड्स द सोल्यूशन। तो हमारे पास जो सिमिलर क्वांटिटीज़ है उनको हमने इकट्ठा करके लिख दिया। इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, इनको दोनों को पहले लिख दिया। और इसी को ही हम सपोज करेंगे y के इक्वल। तो जब ये y हो जाएगा तो y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x हम लिखेंगे। और इसको सिंप्लीफाई करते हुए जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएगी, y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x से आएगा वाई स्क्वायर प्लस 12x वाई प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आता है 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर से आता है हमारे पास 32x स्क्वायर। नाउ मिडिल टर्म ब्रेकिंग, 32 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको सम करें, 32 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको सम करें तो 12y, 8 4s are 32 and 8 plus 4 makes 12, 8 4s are 32. Rest is the same procedure as have been followed in the different questions. So we are having y into y plus 8x plus 4x is common from last two terms to have remaining quantity is y plus 8x. Next is the simple form y plus 8x into y plus 4x which is expression number 4. अगर हम नंबर 4 को देखें और नंबर 1 को देखें तो 1 जो एक्सप्रेशन हमें गिवन थी फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टराइजेशन जिसमें फाइंड करने थे, उसमें हमारे पास ये है कि हमने x की फॉर्म में सारा क्वेश्चन लिखना है, x होना चाहिए। y हमने खुद सपोज किया हुआ है, तो y को सपोज करने की वजह से हम उसको सोल्यूशन में आखिरी स्टेप में नहीं शो कर सकते। सो it is understood that this is not the completion of solution, yet we are to replace y from equation number 3, this is equation number 3, y को दोबारा से रिप्लेस करें किससे, x स्क्वायर प्लस 6 से। तो इसे लिखें दोबारा से, x स्क्वायर प्लस 6 y की जगह प्लस 8x इंटू वाई की जगह
ये y की जगह हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, इस y की जगह भी लिखे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस 4x इसको लिखा, और इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर्स फाइंड हो गए। लेकिन इसके अरेंजमेंट को ठीक करना है हमने। एक्स स्क्वायर के बाद x होता है फिर कांस्टेंट टर्म, इसमें भी एक्स स्क्वायर के बाद x होगा फिर कांस्टेंट टर्म, तो इसका लास्ट स्टेप बन जाएगा यूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस सिक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सिक्स। दिस इज़ द solution or last step. This is the last step. This is the conclusion of question number 4, part number 5. That's all. Okay. Thanks for watching Najam at Mathematics.